A very good morning, 6th class. In the morning, I have given you some practice questions for the periodic second, and this video is related to that questions. Okay, so what were the questions? So these are here. This is the thinking zone, and write full form of. Here is a given IAS. So what is the full form of IAS, students? So Indian Administration Services. You will write yourself. Is that clear? The second one is IPS. IPS means Indian Police Service. Okay. The next one FIR. First Information Report. Now next one is CMO. Chief Medical Officers. PWD. Public Work Department. Is it clear? Now the next one is say true or false. Now first one is there are 525 districts in our country. So this one is false statement. How many in our country? 718 only district in our country. The district collector is a member of the IAS. Yes. This one is a true. The inspector in police is the highest ranking police officer in the district. No. The director general of police is the highest ranking police officer in the district. Got it? The next one is the court of sessions judge is the highest civil court in a district. Yes, this one is the correct. Okay, students, I am showing you the one diagram that is composition and functions of the district administration. Okay, so here is a given कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर. सो यहाँ पर डिप्यूटी जो कमिश्नर है उनका फंक्शन दिया गया. फंक्शन मतलब वो क्या काम करते हैं. वन मोर क्वेश्चन इज हियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर. ये कौन होते हैं? एंड यू हैव ऑलरेडी learned in the previous chapters rural administration and urban administration. So tell, सोचो जरा, what is deputy commissioner? So students, the district is under the charge of a deputy commissioner. Got it? Means listen to me. You know that India is a huge country. It is divided into 28 states and 7 union territories. Okay? And they are further divided into district for an easy administration and provision of facilities to people. So the district is under the charge of a deputy commissioner. Okay, and और क्या करते हैं? He also functions as the district magistrate and the collector of the district. Got it? और उनको अपॉइंट कौन करता है? He is appointed by the state government and he comes from the cadre of the Indian administrative. Got it? So here is a given the functions is वो क्या काम करते हैं. So maintenance of law and order. जो लॉ कानून की प्रक्रिया होती है उनको मेंटेन रखना और उनके लिए ऑर्डर देना.
ये इनका मेन फंक्शन है। और इसके अलावा क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ लैंड रिवेन्यू, गॉट इट, एंड वन अनदर civic amenities and development। civic amenities क्या होती हैं, जो कि हमारे सिटीजन्स की लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए जो उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एजुकेशन फैसिलिटी, ओके। एंड सो इस डायग्राम को आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। पहले यहाँ पर उनके मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को भी बताया गया है कि ऑफिसर इंचार्ज इनके कौन होते हैं। ये हैं जो उनके अंडर में वर्क करते हैं, वो कौन कौन है होते हैं। एक तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओके, ये एसपी को बोला गया है। और इसमें जो उनके अंडर में कौन आते हैं, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि इनकी असिस्टेंट होते हैं, डिप्यूटी। देन फिर इंस्पेक्टर, फिर उनके बाद सब इंस्पेक्टर आते हैं, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और चौकीदार। ये क्या है, ये एक चेन की तरह वर्क करते हैं। और ये वर्क कहाँ करते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में इनकी हेल्प करते हैं, ओके। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स इंचार्ज के लिए जो बोले गए हैं वो हैं जेलर, और जेलर के नीचे कौन आते हैं, डिप्यूटी जेलर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स की, जो उनको मेंटेन करने के लिए वो क्या चेन होती है। वहाँ पर सबसे जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो होते हैं तहसीलदार। उनके अंडर में कौन होते हैं, नायब तहसीलदार, फिर कॉन्गो, देन पटवारी और लेखपाल, ओके। अब हम बात करेंगे सिविक एमिनिटीज़ की एंड डेवलपमेंट की। देखो ये डिप्यूटी कमिश्नर के 3 जोन को बताते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, इनके पास इंचार्जशिप होती है इन 3 चीज़ों की। और इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से चला रखने के लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट होती हैं, चेन वर्क होता है। सो हमने बात की यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की, फिर बात की हमने मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की, फिर बात आएगी अब सिविक एमिनिटीज़ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब वो चीज़ें किन के अंडर में आती हैं, इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिसर इंचार्ज कौन होंगे इनके, इनको फिर से डिवाइड किया गया है इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर, ओके, जो हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करते हैं। नाउ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल, एजुकेशन के लिए। नाउ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर्स, ये फैमिली वेलफेयर के लिए होते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ओके। एंड this is a diagram of composition and function of the district administration. Got it? Now you will observe it very attentively and carefully. Also you can note down. Now student, let we understand one another new terms, okay। कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं अपने चैप्टर्स के अलावा, आप उन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना सीखेंगे उतना ही बेहतर होगा फॉर इन फ्यूचर। इज इट क्लियर? सो हियर इज़ वन वर्ड गिवन, अपॉइंटेड। ये अपॉइंटेड क्या होता है, चूजन टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। जब भी किसी जॉब के लिए नियुक्ति की जाती है, ओके। नाउ डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ स्टेट। स्टेट का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उसको डिवाइड किया जाता है स्टेट के अच्छे तरीके से उसके
चलाने के लिए ओके। सो उनको किस में डिवाइड किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट में। नाउ लॉ एंड ऑर्डर, कंडीशन ऑफ पीसफुल एटमॉस्फेयर, ये शांति बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही नेसेसरी थिंग्स होती है। ओके, नाउ empowered, have the authority to do something. Okay, now crime, an act that is punishable by law. Efficient, able to perform. Got it? Now quick rewind also given here. States and union territories are divided into district for efficient administration. Got it? Now next one, the head of the district is deputy commissioner, who is appointed by the government. Just remember it. Now the next one, the police helps to maintain law and order of a place. Now next one, cases related to finance and property are heard by the सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जितने भी फाइनेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस होते हैं वो उनकी सुनवाई यहाँ पर होती है। और पटवारी क्या वर्क करते हैं? पटवारी मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्ट रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब जो ज़मीन से रिलेटेड जो लेन देन होता है, जो लेखा जोखा होता है, उनको उनका रिकॉर्ड्स ये रखते हैं और उनकी कलेक्शन को भी ये संभालते हैं। ओके ना, अब उसके अलावा हम थोड़ा सा अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है उसको भी हम समझ लेते हैं। अभी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जो शहरों अर्बन एरियाज़ होता है, जो शहरीकरण होता है, शहर होते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है उसको डिवाइड किया गया है नगर पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। ओके, अब यहाँ पर बात की जा रही है नगर पंचायत। ये नगर पंचायत क्या होती है? नगर पंचायत होती है द गवर्निंग बॉडी ऑफ एन एरिया। गवर्निंग बॉडी ऑफ एन एरिया, इज इट क्लियर? एक एरिया की गवर्निंग बॉडी होती है जो क्या करती है? विच इज पासिंग थ्रू द ट्रांजिशनल phase of going from rural to urban type. Okay, and this kind of an area cannot have a municipality as that depends on population of revenue. Got it? अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर उनके फंक्शंस की। जो नगर पंचायत होती है वो क्या काम करती है? सो टू लुक आफ्टर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, सेम एज इट इज़ जो कि गांव में ग्राम पंचायत होती है उनका भी वर्क यही होता है। अगर हम यहाँ शहर की बात करें तो वहाँ नगर पंचायत होती है तो उनका भी यही मेन वर्क होता है। टू बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स, टू ओपन स्कूल्स, पार्क्स एंड डिस्पेंसरीज, टू प्रोवाइड एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइटनिंग एक्सेट्रा, and to look after the hygiene of the area and to keep records of birth and deaths. ओके और उनकी बात करें तो जो फंक्शंस के अलावा जो फंक्शन उन्हें करने पड़ते, जो काम करने पड़ते हैं, उनके लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो उनके पास पैसा आता है ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है किसी भी काम को करने के लिए। और जो टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स, रोड टैक्स एंड टोल टैक्स, यहाँ से उनको टैक्स मिलता है तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाते, जितना भी खर्च होता है वो अच्छे से यहाँ कर पाते हैं। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दिस इज अ डायग्राम। ओके, और ये डायग्राम क्या शो करता है? स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है स्टूडेंट्स? द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अ लार्ज सिटीज़। ओके, जो लार्ज सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट होती है उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होते हैं? जो वोटर्स ऑफ द टाउन होते हैं, यानी कि टाउन में, उस शहर में रहने वाले जो वोटर्स होते हैं वो अडल्ट मेंबर्स होते हैं। अडल्ट मेंबर्स मतलब जो 18 या 18 साल की एज, जिनकी एज होती है ऊपर की एज, वो ही क्या करते हैं? वोट दे सकते हैं। ओके, और उनको अडल्ट मेंबर्स की में काउंट किया जाता है। वो क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। इलेक्ट कैसे करेंगे? अपने हिसाब से वो चूज़ करेंगे वोट
देंगे और उनके बाद कौन कौन यहाँ पर चुना जाता है, काउंसिलर या मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। देखो मेन बात सुनो, अभी उस ए पर्टिकुलर एरिया को भी वार्ड्स में डिवाइड किया गया है ताकि काम है वो अच्छे से किया जाए। ओके, और हर एक वार्ड का अपना एक काउंसलर होता है। अब उसको फिर 6 एल्डरमैन और इलेक्टेड मेंबर्स में 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। अब ये एल्डरमैन क्या होते हैं, एल्डरमैन मतलब जो कुछ मेंबर होते हैं वो ऑल्सो रिस्पेक्टेबल जो सिटीजन्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर इलेक्ट मेंबर्स, ये दोनों चीज़ें मिलके फिर इलेक्ट करती हैं किनको, चुनते किनको हैं, मेयर को। ओके, और डिप्यूटी मेयर मतलब जब मेयर होगा वो क्या होता है। वन मोर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ अभी यहाँ पर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हु इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, हु इज़ द हेड ऑफ म्युनिसिपल कमिटीज़ एंड हु इज़ द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आपको पता है in your 5th class you also have studied about the local self government, और local self government को 3 parts में डिवाइड किया गया है। गांव में देखें तो ग्राम पंचायत, उसके बाद छोटे शहर में देखें स्मॉल टाउन एंड स्मॉल सिटीज़ में तो म्युनिसिपल कमिटीज़, एंड थर्ड वन बड़े शहर की बात आएगी, लार्ज या बिग टाउन एंड बिग सिटीज़, तो वहाँ पर आएगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इनके भी हेड होते हैं, तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा, सरपंच, म्युनिसिपल कमिटीज़ का चेयरपर्सन एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर। ओके, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, बिग टाउन एंड बिग सिटीज़ में, तो उनके हेड कौन हुए, मेयर। अगर मेयर की अब्सेंस में इनके काम को कौन संभालेंगे, डिप्यूटी मेयर। ओके, और इनको इलेक्ट कौन करते हैं, एल्डरमैन एंड इलेक्टेड मेंबर्स। और ये इलेक्टेड मेंबर कहाँ से आते हैं, वार्ड से चुने हुए, और उनको कौन चुनते हैं, अडल्ट मेंबर्स। गॉट इट। उसके बाद मेयर क्या करते हैं, मेयर प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। जितनी भी वेलफेयर का काम होता है उनके काम को देखने के लिए, उनकी हर एक चीज़ को देखने के लिए मीटिंग रखी जाती है, और मीटिंग को कौन हेल्ड करते हैं, मेयर। ओके, और ये कहाँ होती है, कमिटीज़ में। अब ये क्या किस किस चीज़ को देखते हैं, हम देखिए कमिटीज़ में कितनी कमिटीज़ होती हैं, यहाँ पर डिवाइड किया गया है उनको ऑलरेडी कमिटीज़ को। एक तो वर्क्स कमेटी में पब्लिक हेल्थ कमेटी, रूरल एरिया कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, एजुकेशन कमेटी, वाटर सप्लाई एंड सीवेज कमेटी एंड जनरल पर्पसेस कमेटी। इन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है ताकि वेलफेयर अच्छे से हो सके। ओके, अब जितना भी काम होता है उनके लिए खर्च भी होता है, और वो खर्च और वो पैसा कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ इनकम किसकी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। कहाँ से आती है, एक तो देखो ग्रांट इनको मिलती है, कहाँ से मिलती है, रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और दूसरा क्या होता है, जो इनकम मिलती है इनको फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड ओन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद खरीदती है जिस ज़मीन को, वहाँ से भी इनको मतलब खरीदते नहीं है, जो लैंड ओन्ड जो उनकी अंडर में आती है, जितनी भी ज़मीन जो भी उनसे इनकम मिलती है वो भी यहाँ से उनकी सोर्स ऑफ इनकम मानी जाएगी। और जो रेवेन्यू जनरेटेड बाय द टैक्सेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जैसे एक तो हाउसेस एंड लैंड से जो प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन या इनकमिंग गुड्स, यहाँ से ये क्या है, इनके सोर्स ऑफ इनकम है। गॉट इट। और इसके अलावा हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ क्विक रिमाइंड देखते हैं। वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज़ और नगर पंचायत। अब देखो अर्बन एरियाज़ में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको किस किस में डिवाइड किया गया, नगर पंचायत में, म्युनिसिपल कमिटीज़ एंड कॉरपोरेशन। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, दीज बॉडीज लुक आफ्टर द हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड वाटर सप्लाई फॉर द सिटी। सिटी के लिए ये इतना काम करती है, उन चीज़ों की देखभाल करती है।
और द टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, और टाउन को कई वार्ड्स में भी डिवाइड किया गया है। फ्रॉम वेयर द काउंसलर आर इलेक्टेड बाय द, यहाँ पे काउंसलर चुने जाते हैं कैसे, इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, और द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन होता है, इज़ द मेयर, हु इज़ unanimously elected by the councillors. Got it? Now last and final, here is given the thinking zone. Thinking zone, here is given column A and column B. You have to do yourself. Is that clear? First of all, you will read the both chapter, rural administration and urban administration. Is that clear? Then you can solve easily. So नगर पंचायत क्या करती है, आप यहाँ से रीड करेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल एंड एल्डरमैन, ये कौन होते हैं। आप कॉलम बी पढ़ेंगे, लार्जर सिटीज़ कहाँ होती हैं, ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया, रिस्पेक्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड पब्लिक फिगर्स इलेक्टेड फॉर कॉरपोरेशन और काउंसिल। ओके, सो यू हैव टू डू दिस थिंकिंग जॉन योर सेल्फ। ओके, और अब जो आपके पीरियोडिक सेकंड होने वाले हैं, आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करेंगे और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। गॉट इट?